The Bhagavad Gita is called many things, a work of philosophy, a way of life, a dictum to conquer your fears. Now, a Russian court is deliberating a plea which calls the Gita extremist literature spreading social discord. Hard to imagine, but true. The proposed ban on the Russian translation of ISKCON's version of the Bhagavad Gita, drawing sharp reactions from even the country's ambassador to India, who chose to refer to Russian prosecutors who seek the ban as neighborhood madmen. And we are expecting the court to give its verdict on the 28th and 29th. वैसे विचारों के इस टकराव में उम्मीद करें कि विवेक जीतेगा, जिसकी वकालत करती है गीता। It's a good question. To be honest with you, I have to admit that from the very beginning I didn't take it seriously either. The case is so absurd that I couldn't believe that this kind of case can be taken seriously. But when the time came by, I realized that it's a very serious matter. So I think for some people it some time was needed to understand how serious it is. गीता का जो संदेश है पूरे मानवता के लिए है। बाइबल में भी कहा गया है, तुम क्या पाओगे अगर पूरे विश्व को जीत लो और अपनी आत्मा को खो दो। तो गीता का ज्ञान कोई सेक्टेरियन ज्ञान नहीं है। ये सोचना कि गीता केवल विश्व की एक जात के लोगों के लिए है, एक देश के लिए है, ये गलत है। समस्या यही है, हर मानव समाज का वो गीता पढ़ता नहीं, समझता नहीं और जीवन में उतारने की कोई बात ही नहीं। मेरा अनुरोध है लोगों से कि ये भगवद गीता ज्ञान वो पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत रोजना गीता सुगीता कर्तव्या के में शास्त्र करे। बड़ा भारी साजिश है भगवान कृष्ण के खिलाफ। After गलती को in Parliament, MPs told the government to convey to Russia the significance of the Bhagavad Gita for India. श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। All Indians will live in Russia, but entire Hindu community are also from different countries. Like we have a big community from Nepal, Sri Lanka, Mauritius, Indians. And वास्तव में ये जो भगवद गीता का इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, रूसी भाषा में भी गीता उपलब्ध है वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो कुछ बहुसंख्यक धार्मिक समूह ग्रुप है वहाँ पे, जो इसकी दुर्भावना से प्रेरित होकर के ऐसा कुछ एक साजिश रच रहे हैं। धार्मिक धर्मगुरुओं ने भी इस पर अपना विरोध जताया है। हालांकि रूस की तरफ से ये भी बात कही जा रही है कि वो इसको संज्ञान पर लेंगे और इस तरह से। The matter was also taken up with the Russian ambassador based in India, His Excellency Mr. Alexander Kadakin, who is himself a well-known Indologist. वास्तव में उन्होंने गीता को तो पढ़ा नहीं है। अगर गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे कि गीता भगवान कहते राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, दिस इज द किंग ऑफ नॉलेज। इतना गुह्यतम ज्ञान है कि इसको आसानी से वो लोग कैसे समझेंगे। वो उसका गलत अर्थ लगा करके इसको टेररिस्ट ग्रंथ करार कर रहे हैं। नॉट ओनली ए ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया, इट इज a classical heritage of the world of peace, amity, and one's own obligation and duties. Maybe misguided. No, I'm not saying it is not India's song. It is definitely for India also. But I'm saying it is a song of life. Universally, it has been accepted as that. I think Gita is a national book anyway. You don't need to have it declared. Okay. And for us, the teaching is that we should fight against the inner evils, the lust, anger, greed, pride, envy. This kind of nonsense must not be tolerated.
I'm not surprised at all, and I think it is quite correct and well done that the government of India has reacted in this way. शांति को बढ़ाते हैं और पूरे विश्व भर में इस भगवद गीता को पढ़ा जा रहा है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसका अनुवाद विश्व के लगभग 70 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में हो चुका है। दुनिया के लोगों को इसमें संकीर्णता नहीं दी। अगर रूस में गीता पर पाबंदी लगी तो वो रूसी सरकार से मिले सारे सम्मान वापस कर देंगे। साहब, दास साहब से बात करेंगे। दास साहब, कोर्ट में आज क्या हुआ? बस जो हम लोग चाहते थे वही हुआ। वास्तव में बड़ी खुशी की बात है कि हम जीत गए और गीता की जीत है, गीता जीत गई। क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन हैं वहाँ पर विजय निश्चित है, और ये विजय हुई। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार के, संसद के सभी सदस्यों का भी, विशेषकर जो रशियन गवर्नमेंट है उनका भी काफी सहयोग रहा है। भारतीय दूतावास और रूसी दूतावास के सहयोग से, सबके सहयोग से ऐसा संभव हो गया। इस्कॉन जो संगठन है वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, उसका अनुवाद है भगवद गीता का, उस पर ये फैसला कोर्ट ने दिया है और ये जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है गीता पर बैन लगाने की, गीता को पर पाबंदी लगाने की।